Assalamu alaikum. Today our topic is problem solving in C language or programming. Problem solving in the computer science. प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर साइंस को उसे कहते हैं जिसमें हम सिस्टमैटिक प्रोसेस के ज़रिए इन विच वी यूज द सिस्टमैटिक प्रोसेस of analyzing any complex problems and then design a logical step-by-step solutions writing any code in the computer without writing any code in the computer. For examples, in the program we want to obtain some result of the students percentage, then we will not write any cost of the students. For example, if we write a program in the computers, then we want the students obtain marks and total marks, and then we get the percentage and the result. And the steps involved in the problem solvings are there are 7 steps involved in the problem solving. First is problem analysis, in which we require the gathering problem analyzing problem analyzing is one of the most critical phase in the problem solving. Here we identify the problem by different methods. First is we can examine the problems by using IPO model. We have to identify the key IPO model. IPO model is input processing output. Input what डाटा इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र, हमें यूज़र से कौन सा डाटा रिक्वायर्ड कर होगा। इसी तरह अगर हम प्रोसेस करेंगे उसके बाद इसको हम प्रोसेस करेंगे, यानी हम कैलकुलेशन डाटे पे अप्लाई करनी पड़ेगी या फिर लॉजिकली डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा डाटे पर। इसी तरह आउटपुट ये होगा कि विच data is required, which output is required to the data. For example देख लें हमें एक for example convert the computer words। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब से हमने ये प्रॉब्लम मिली थी कि स्टूडेंट के नंबर्स को हमने परसेंटेज में ऐड करना। What is the problem solving? We convert the problems words into the three core component is input, output, and percentage. First, we input the variables obtain marks and total marks. Process हम ये करेंगे कि calculate the obtain marks over total marks divided by the 100। फिर मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आएगा, रिजल्ट में भी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इसके बाद प्रॉब्लम एनालाइज के बाद दूसरा स्टेप आता है एल्गोरिथम, यानी हम प्रिसाइज कोड, यानी हमने इंस्ट्रक्शन देनी है अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को कि हमारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें। एल्गोरिथम डिज़ाइन ये होता है, फर्स्ट ये होता है कि अगर हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम इज़ अ प्लेन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कंप्यूटर। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं इन द इंग्लिश फॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दिस इज द ड्रिफ्ट फॉर द logic. This is the drift of our logic. Next, for example, in algorithm, first we step by step logic or start declare variables, then हमने डिक्लेयर करना है वेरिएबल्स के, देन हमने इनपुट करना है। जब हमें एग्जांपल दी गई कि एक परसेंटेज निकालने हैं स्टूडेंट के प्रोग्राम में,
तो फिर पहले हम डिक्लेयर करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एंड एंड आर ऑलवेज फंडामेंटल ऑफ द एल्गोरिथम डिज़ाइन। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद हम लिखेंगे डिक्लेयर वेरिएबल्स। डिक्लेयर वेरिएबल्स जो से होते हैं ना, हम फॉर एग्जाम्पल अब 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज हो सकती है, या फिर कोई भी हमारे पास जो है डाटा हो सकता है। इसके बाद हम इनपुट करेंगे। इनपुट हमें करना पड़ेगा 10 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, कैलकुलेट की परसेंटेज। जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज को, तो हम परसेंटेज की फार्मूला लगाएंगे, तो फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये सारा काम हो जाएगा, तो फिर हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आता है फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग मीन्स फ्लो चार्ट is the graphical representation of the algorithm. It uses the various type of flow charts like uh, for the presentation, graphical flow charts like oval or circle, parallelograms, rectangles, arrows, diamonds for representing the algorithm. First input, and for input and output we uses the parallelogram. For start, stop and declare we uses the oval, and for calculation we use the rectangle. And arrow declare from, and arrow will be declared, and arrow will be declared from one step to six steps to show you the execution. इसके बाद हमारे पास कोडिंग आता है। In coding is very important phase. In this phase we convert our flow charting and algorithm translated into the highly programmed language like of the computer, like C or C++. This it strictly uses the synthetic rules for their languages. इसके बाद टेस्टिंग आ जाता है और डबिंग आ जाता है। टेस्टिंग मेरे ख्याल में we use the dummy variables to prove that our result coming from the uh, chart is correct, coming from the uh, problem from the code is correct. Or debugging means the process of finding and solve the error in the program is dubbing. There are three types of the dubbing. This is maybe three type of the errors. सबसे पहले आता है सिंटैक्स एरर, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। दूसरा आता है लॉजिकल एरर, इसमें जो है ना हो सकती है, जैसे हमने प्लस लिखना था उसकी जगह हमने माइनस राइटिंग यूज़ ऑफ माइनस इंस्टेड ऑफ प्लस इन द प्रोग्राम। दिस इज़ द लॉजिकल एरर, यानी फॉल्ट इन द राइटिंग, फॉल्ट इन द प्रोग्राम। और लॉजिकल एरर यहाँ पे रन time error, like the programs may be crashes due to the all numbers is dividing by 0, इसकी वजह से भी हो सकता है। आखिरी आता है डॉक्यूमेंटेशन, means you write about the codes, about the programs for the future, for yourself future or for others. It may be external documentation, internal documentation. Internal documentation means you write anything like about the code, like what is this
calculation code is used for external means you external documentation means you give step-by-step instruction to the newer beginners how to start the code, what is this, how to start it, and what is the letters and numbers in it. This is all the external कोर्स दैट इज़ द फिनिश समरी। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स हमें प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना फिर उसको सॉल्व करना। इसके 6-7 स्टेप आते हैं। पहला है प्रॉब्लम एनालाइजिंग में, इसमें हमें गैदरिंग चाहिए होगी। दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें मेन सोर्स होता है IPO इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसके बाद प्रॉब्लम एनालाइजिंग, प्रॉब्लम एनालाइजिंग के बाद एल्गोरिथम डिज़ाइन। एल्गोरिथम डिज़ाइन में हमें पता है कि हमें इंग्लिश लिखनी होती है वेबसाइट कोड जो कि एक ट्रू ऑल नेटिव होता है। इसके बाद हमें आना है फ्लो चार्टिंग में हमें पता है कि वो फ्लो चार्टिंग ग्राफ जो से हमें बनाने हैं, जैसे पैरेललोग्राम, डायमंड, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास आता है कोडिंग में हमें पता है कि लॉजिकल हमें जो सा लॉजिकल ये क्या था लॉजिकल एल्गोरिथम को हमने ट्रांसलेट किया हाईली लैंग्वेज में, हाईली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है टेस्टिंग डीबगिंग में हमें एरर ढूंढ को ख़त्म करने होते हैं। इसी तरह टेस्टिंग में हम वो टेस्ट करते हैं कि कोई सैंपल लेके तभी इनपुट लेके हम टेस्टिंग। इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स in the name of